Our next speaker is Shri Deepak Kapoor ji. Shri Deepak Kapoor ji is the director of the Gulshan Group, a Delhi NCR-based business conglomerate and a first-generation entrepreneur. The group operates across real estate, both residential and commercial and construction industry. Coming from humble beginnings to becoming a renowned industry in North India, his vision has propelled the group's growth through strategic diversification across all business areas. Mr. Kapoor always believes in working for values as opposed to only financial gains. He has been a recipient of numerous awards and honors over the past few years. He holds a master's degree in business administration from the Faculty of Management Studies, Delhi, and a member of RICS, CREDAI, and NAREDCO. He has over 3 decades of experience in financial, sales, construction, and marketing strategies. He is confident of bridging a transparent and robust relationship between developers, consumers, and the government bodies to streamline the policies for better real estate development. He has recently been awarded and recognized with Kalam Innovation and Governance Award, Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Award. And idealistic Mr. Kapoor believes that perfection is not attainable, but if we choose perfection, we can catch excellence. He brings about passionate changes in business and efficiently plans, schedules, and monitors the progress. As a co-founder of the group, Mr. Kapoor has helped implement progressive policy for delivering quality projects on time. Mr. Kapoor has played a major role in improving the quality of second-in-line people by initiating training and skill development program for construction site labor. Believing that learning is a never stop, he himself imparts and participates in selling and soft skill training at all managerial levels. He is covered extremely in the media through print, electronic, and digital avenues across Economic Times, Financial Express, Business Standard, Aaj Tak, NDTV, CNBC TV 18, and all leading online portals. Once again, Balwinder ji, namaskar. And सारे जो भी इस डिजिटल फोरम में अवेलेबल हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार. ये टॉपिक पंकज जी ने बलविंदर जी से गाइडेंस लेके बहुत अच्छा चुना है. That the RERA की responsibility in overtaking and making the real estate a very transparent and open industry is very commendable. और उसकी हम आज रूपरेखा देख रहे हैं और वो स्टक प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, जो आज का मेन टॉपिक है. तो उसके लिए मेरा सिर्फ इसमें यही कहना है कि काफी बातें तो हमारे माननीय बलविंदर जी ने और अमित मोदी ने अभी बता दी हैं. तो मेजोरिटी सारी बातें घूम फिर के हम जितनी मर्जी लंबी चर्चा कर लें, नेट रिजल्ट यही है. इसमें मैं एक फैक्टर ऐड करना चाहूंगा कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम इवॉल्व होते हैं. पहले ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, अब रियल एस्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गई है. अब रियल एस्टेट में रेरा इज अ रियलिटी व्हिच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन. इतनी बढ़िया चीज रियल एस्टेट को नहीं मिल सकती है और इसमें हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी की ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. एंड इसका सारे ही उपभोक्ताओं को भी बहुत फायदा हुआ है. कंज्यूमर को काफी लेवल तक अब इसमें सेटिस्फैक्शन मिल गया है और कंज्यूमर का ट्रस्ट जो बिल्कुल ही खत्म हो गया था रियल एस्टेट की तरफ से, वो वापस आना शुरू हो गया है. थैंक्स टू रेरा एंड थैंक्स टू द ऑफिसर्स ऑफ रेरा. उसमें बलविंदर जी की कंट्रीब्यूशन, राजीव जी की कंट्रीब्यूशन एंड रेरा अथॉरिटी ने जो एक रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा ही ओपन प्रैग्मेटिक प्लेटफॉर्म बनाया. उस प्लेटफॉर्म में दे कॉल ईदर द डेवलपर और देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो एग्रीव्ड कंज्यूमर है जिसको सेवाएं नहीं दे पा रहे थे डेवलपर किसी वजह से, उनको आमने सामने बैठा के उनके बीच में वार्तालाप करा के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना इज ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म. एंड सबसे कम समय में इसमें काफी अहमियत की गई, काफी मेहनत की गई. एंड रिजल्ट्स अभी बलविंदर सर ने बताया है कि टोटल कितनी सारी कंप्लेंट्स थी. आई थिंक इट वाज इन थाउजेंड्स. एंड उसमें कितनी सारी रिजॉल्व हो गई हैं. 37,000, 28,000, 21,600 रिजॉल्व हो गई हैं यूपी में, एनसीआर में. तो इस नंबर गेम से हमें पता चलता है कि रेरा कितनी एक्टिवली काम कर रही है एंड कोशिश कर रही है कि कंज्यूमर्स को उनका हक दिलाया जाए और कंज्यूमर्स को उनको जो भी उन्होंने रियल एस्टेट एसेट खरीदा है वो उनको पोजीशन दे दिया जाए. इसके अलावा मेरा इसमें ये कहना है कि हम एक्चुअल में जब बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि हमारे अंदर एक ही इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है, चाहे वो डेवलपर की साइड से हो, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से हो, चाहे वो रेरा की तरफ से हो. वी हैव ए रेजिस्टेंस टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. Our environment is changing very dynamically, very fast.
बट आवर पॉलिसी, प्रोसीजर, टर्मिनोलॉजी एंड वो सब चीजों में चेंज होने में काफी टाइम लग रहा है। एंड इसी की वजह से यही गैप है जिसकी वजह से अभी भी स्ट्रक प्रोजेक्ट एक वापस में एक स्पीड से काम कंप्लीट करके कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें मेरा कहना यह है कि पहले होता था कि एक डेवलपर लैंड लेता था और उसको डेवलप कर देता था। आज की रियलिटी यह है कि अगर वो अपनी फाइनेंशियल क्षमता से कंप्लीट कर पाता तो हमारा ये जो आज एक वर्ड आया स्टक प्रोजेक्ट, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई स्टक प्रोजेक्ट होता ही नहीं। सिंस हमने देख लिया कि उसकी फाइनेंशियल क्षमता नहीं है, वो किसी वजह से भी उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया है, तो उसमें किसी और के आने की जरूरत है। उसी टॉपिक को अभी मेरे दोस्त अमित मोदी ने ये एड्रेस किया कि को डेवलपर पॉलिसी आनी चाहिए। मेरा इसमें और कहना है कि बड़ी सारी नई टर्म्स आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट में आ गई है, जिसको हम ज्वाइंट वेंचर के नाम पे बोलते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम पे बोलते हैं, को डेवलपमेंट के नाम पे बोलते हैं, इसमें हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट डीएम मॉडल के नाम पे बोलते हैं। तो इतनी सारी व्यवस्था है जिससे अगर हम इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें काफी स्टक प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी आने वाले 2-3-4 साल में कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनमें इनकी एप्लीकेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सिंस एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो वो बड़ा ही परेशानी का घर है कि एक डेवलपर जो दूसरे दोस्त को ठीक करने के लिए उसकी प्रॉब्लम में सहायता करने मददगार बन के आना चाहता है और एज ए कोड डेवलपर आना चाहता है, लेकिन उसको किसी भी फॉर्म में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो आज अगर कोई भी आएगा और मान्यता प्राप्त नहीं होती तो वो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कहना है, स्पेशली मैं एड्रेस करूंगा बलविंदर सर को, क्योंकि रेरा अथॉरिटी की गवर्नमेंट भी सुनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जब भी सर आपको मौका मिले, हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये कुछ इश्यूज हैं कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं उसमें रेरा इन चीजों को मान्यता प्राप्त करवाए थ्रू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी वजह से नए नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ेंगे और जो भी स्टॉक प्रोजेक्ट है उनके अंदर मिल के इन प्रोजेक्टों को बाहर निकालेंगे और कंज्यूमर्स के जितने भी पैसे फंसे हुए हैं उनको उनका घर का सपना पूरा होगा और उनको उनकी चाबी मिल पाएगी। इसी में ही मेरा सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि जैसे हम कोर्ट ने एक सोल्यूशन दिया कि जो एप्लीकेबल होना था कंप्लीट नोएडा जोन में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाई। ये 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड यही रही तो फिर हम कैसे प्रोजेक्टों को पूरा कर पाएंगे। आज हालत ये है कि अगर वो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफी लोग जो अभी एक कैटेगरी में खड़े हैं कि ये डिफंक्ट प्रोजेक्ट हो गए हैं, उनको उनके अंदर फिर एक जान आ जाएगी। उनके अंदर जैसे अभी मेरे दोस्त ने बोला, नेटवर्क पॉजिटिव नजर आएंगे तो उसमें रेप होप होगी और वो काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी बलविंदर सर से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, इनकी इम्प्लीमेंटेशन सर हम जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी फास्ट ट्रैक में हम स्ट्रक प्रोजेक्टों को से बाहर आ पाएंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है सर कि आपने देखा पेंडेमिक में यू बीन वेरी ह्यूमन, रैशनल एज एन अथॉरिटी और एज एन इंडिविजुअल एज वेल। तो आप लोगों ने डेवलपर की प्रॉब्लम को सुना और उसमें पहली बार भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, दूसरी बार भी 6 और 9 महीने का एक्सटेंशन दिया, जिसको आपको लगा कि हाँ भी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेबर नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई रिजॉल्व नहीं कर रहे, तो इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, तो आपने टाइम एक्सटेंशन दिया। बट मेरा कहना है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं दिया। सारा काम बंद था, लेकिन उनके इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट सारी डेवलपर कम्युनिटी पे लगते रहे और आज तक भी लगते जा रहे हैं। ये कहाँ की व्यवस्था है कि एक तरफ तो जब पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को भी एक सपोर्ट और एक रिकंसिलेशन मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे यही रिक्वेस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी एंड रेरा अथॉरिटी से भी कि हमें सब चीजों को बड़ा रैशनली देखना चाहिए। हाँ, कहीं गलत हुआ है तो वहां किसी को कोई भी एडवांटेज नहीं दी जाए, बट एक जेन्युइन कॉज है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का बर्डन, जिसकी वजह से आज मोस्ट ऑफ माय डेवलपर फ्रेंड्स आर फीलिंग फिक्स्ड और फाइनेंशियल टाइटनेस है, तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं होगी तो वो कैसे आगे आएंगे। दो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई जो एसबीआई के माध्यम से समिया स्कीम आई, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन काफी ही स्लो है। अब हालांकि फास्ट ट्रैक में काम शुरू हो गया है, लेकिन वो आई बहुत समय पहले थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब कुछ प्रोजेक्टों में आनी शुरू हुई है।
गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट कर रही है, और मेरा इसमें कहना ही है कि हमारी, मैं जहां से बात शुरू की थी कि देयर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उस रेजिस्टेंस को हम हटा के अगर फास्ट ट्रैक में जो नई डेवलपमेंट्स है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो भी स्ट्रक प्रोजेक्ट है उनको भी बड़े अच्छे से हम फास्ट ट्रैक में कंप्लीट कर पाएंगे। एंड दोबारा से ही, चाहे एनसीआर हो, जो पूरा इंडिया हो, वहां पे हम एक सद्भावना देख पाएंगे, एक खुशहाली का माहौल देख पाएंगे, जिसमें भी किसी भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके घर उनको समय पे मिल गई। मेरा बेसिक तो पॉइंट यही है इस प्लेटफॉर्म पे कहने का। और बाकी और भी बड़े सारे कोर्ट्स में ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज में नहीं होती है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम अभी भी आगे ही बढ़ती जा रही है। समय ही समय मिलता जा रहा है, लेकिन कोई एक्शनेबिलिटी नहीं होती है। तो एक जो पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में डिले है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हम जितने मर्जी पैसे लगा दें, उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरिंग करना ही पड़ता है। तो वहां पे इंटरेस्ट फैक्टर, काम हो ना हो, वो इंटरेस्ट फैक्टर रेगुलर आता रहता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट काफी ही सोच समझ के करने पड़ रहे हैं और बहुत ही प्रोजेक्ट नेगेटिव हुए पड़े हैं। तो इसमें सोचने की जरूरत है। एंड इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि रेरा इज ए वेरी पॉजिटिव रे in real estate industry in bridging the gap between the consumer and the developers. Thank you very much. Over to Pankaj ji. थैंक यू दीपक जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स। आई थिंक आपने बहुत सारे सजेशन दिए हैं और बहुत सारा मेरे ख्याल से होमवर्क भी दिया है, शायद बलविंदर जी को भी और शायद गवर्नमेंट के ऑफिशियल को भी, क्योंकि ये नवल जी जो है हमारे, वो गवर्नमेंट को काफी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक नवल जी आपको भी काफी होमवर्क मिल गया है। हमारे जो दोनों अभी स्पीकर सर ये सर सॉरी टू इंट्रूड, मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये इंडस्ट्री के लिए है सर, सबका भला हो जाएगा, उसी में हम सबका भला है। खाली एक का भला नहीं चाहिए, सबका भला चाहिए, तो सब इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी।